So everybody is present here in the meeting? All of you, foundation to class 2, all the teachers? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so we'll be talking about holistic progress card. Just let me know if the screen is visible to you. Is the screen visible? Yes, ma'am. It is visible. Okay, so we will be talking about, though I have already shared with you, like we will be creating a report card based on the prototype released by CBSE. Okay, so we have got 6 developmental domains and we have got 13 curricular goals, 68 competencies there are there, and based on that we have created our report card. But we should also understand the document that is released by Nipun Bharat, right? Initially, we got it from Nipun Bharat. According to Nipun Bharat, they have divided the developmental goals into 3 parts. They are saying there are 3 goals they are there. First is health and well-being, right? In health and well-being, we will be talking about physical development. Obviously, when we talk about health and well-being, kya kya aayega usme? Physical development will be there. Health and hygiene will be there. It will be related to senses. Okay, it will be related to socio-emotional development as well. Okay, some of the aspect of that also. So we will be talking about, I do not know how many of you have read this document, though I have shared it with you people in the group number of times. It's quite comprehensive, lengthy document. I have taken some snapshots from this document. You can refer to it. And I have collected some data from like the courses that I have already shared with you. Like you can attend some courses from Diksha, right? I have shared with you the links. I have told you to enroll yourself. How religiously you are doing, I do not know, but I have shared with you, right? Because I read it thoroughly. हर एक का अपना समझने का तरीका होता है, कोई सिर्फ एक बार पढ़ के देख के समझ लेता है, but I read it word to word so that I can understand and I can help you people to implement the same. Okay, तो इसमें से जो points आएंगे आप please उसको note करते हुए जाना, and this will be an interactive meeting where I'll be asking you people. So make sure you volunteer to share your thoughts also. In today's video, we'll be talking about developmental goal number 1. It may not be possible to complete this in today's meeting, right? Developmental goal 1, because it has got many 18. I'll just share with you. Developmental goal, I have already shared with you. It is related to health and well-being, right? And as you can see here on the right hand side, I have mentioned here awareness of self. Kya kya aata hai isme? Awareness of self, development of the positive self concept, then self-regulation is there, decision making, problem solving skills, pro-social behavior, like how the children they are behaving with others, managing emotions, right? Healthy habits, hygiene, right? So these things they are there. And then we have got gross motor skills, fine motor skills, eye-hand coordination, participation in individual and team and sports, etc. So these things will be coming over there. So, okay, as I just wanted to ask you actually, what do you mean by Nipun? क्या है निपुण का मतलब? What is the meaning of Nipun? NIPUN, Nipun. टेस्ट नहीं ले रही आपका, बता देते हूँ, बट यू शुड बी अवेयर ऑफ इट. ओके, पता होना चाहिए. निपुण, N for the national initiative for, P is for proficiency in reading with understanding and numeracy. कि बच्चा रीड करे पर उसको समझ में भी आए. ये नहीं कि reading for the sake of reading. When the child is reading, the child should be able to understand and comprehend like what is given in the passage or in a story or in a poem, right? It can be in the first language or can be in the second language. And also we are working on numeracy. You should be familiar with, you should know the full form of Nipun. Okay, this is the initiative by Ministry of Education where we are talking about, where we are taking initiative for the foundational literacy and numeracy. You know, जितना एक घर की नींव मजबूत होगी उतनी तो हम उसके ऊपर बड़ी और strong building बना सकते हैं. तो बिल्कुल I mean that responsibility is on all of you, right? So we should be teaching our students, building a strong foundation so that they can even explore a number of other careers, opportunities when they grow. Okay, so ऐसा नहीं कि उनको बाहर से कोई हमेशा उंगली पकड़कर ही चलाता रहे, सिखाता रहे, but they can take their own decisions. तो ये छोटी छोटी जो habits है, right from the very beginning we should be able to develop in our students. ये जो आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर 6 डोमेन्स नजर आ रही हैं, इनके अकॉर्डिंगली हम अपना रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं. 6 डेवलपमेंटल जो डोमेन्स हैं.
और ये सारी की सारी जो डोमेन्स हैं हमारे 3 डेवलपमेंटल गोल्स के अंदर ही कवर हो जाती हैं, जो हमारे 3 निपुण के गोल्स हैं, जिसमें से हम एक गोल की बात आज कर रहे हैं। ये जो आज जिस गोल के बारे में बात कर रहे हैं, HW लिखा है, देखिए ऊपर, सबसे ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पर, डेवलपमेंटल गोल नंबर 1 HW मींस हेल्थ एंड वेलबींग। इट फोकसेस ऑन, ये वाले एस्पेक्ट्स इसमें कवर होंगे। फिजिकल एंड मोटर डेवलपमेंट कवर होगी, राइट। फिजिकली बच्चे फिट हो, उनकी ग्रॉस मोटर फाइन मोटर स्किल्स डेवलप हो, एक्सरसाइज और गेम्स में पार्टिसिपेट करें, अपनी हेल्थ एंड हाइजीन का ध्यान रखें, खाना अच्छा खाएं, साफ सुथरा खाएं, बैलेंस डाइट लें, अपनी बॉडी को, अपने हाथ को क्लेanलीनेस का, अपने आसपास की सराउंडिंग का भी क्लेanलीनेस का ध्यान रखें, और साथ में सोशल, इमोशनल एंड एथिकल डेवलपमेंट, राइट। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे अलग अलग कॉम्पिटेंसीज की। यहाँ पर मैं आपसे पूछूंगी कि व्हाट आर यू इंटरप्रेटिंग फ्रॉम दिस। यहाँ पर आपको क्या क्या नजर आएगा, आपको पहले बता दूं, HW 1.1 ये जो लिखा हुआ है, 1 का मतलब है पहले वाला 1, HW 1.1 का मतलब है, इसमें 1.1 है, तो जो पहला 1 है डॉट से पहले, उसका मतलब हम फर्स्ट जो स्टेज है, क्लास है फाउंडेशन की, उसकी बात कर रहे हैं। यानी हम बात कर रहे हैं फाउंडेशन क्लास की हमारे स्कूल के अकॉर्डिंगली, या हम बात कर रहे हैं नर्सरी की, ठीक है, ऑल राइट। तो हम एज पर निपुण भारत, उन्होंने इसमें कितनी क्लासेस को कवर किया है, दे हैव कवर्ड हियर क्लासेस अप टू 3rd, यानी फाउंडेशन, LKG, UKG, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, राइट, इतना। पर हम कहां तक रिपोर्ट कार्ड ये वाला बना रहे हैं, टिल क्लास 2, ओके। तो ये समझ में आ गया आपको, राइट। So all of you please focus on here only, don't talk here and there, all of you, right? And now listen to me, 1 का आपको बात समझ में आ गई, what is 1? HW is health and wellness, 1 is first class I am talking about। और यहाँ पर मैं कितनी क्लासेस कवर करूंगी अभी, टिल क्लास 2, राइट। मैंने यहाँ क्लास 3rd का भी कवर किया है, क्योंकि हम क्लास 3rd को सेपरेटली नहीं ले रहे हैं, तो आपको क्लास 2 में ही वो जो बच्चों की कॉम्पिटेंसीज हैं वो कंप्लीट करने की कोशिश करना है, ठीक है। और ये जो पॉइंट के बाद 1 नजर आ रहा है, HW 1.1, जो पॉइंट के बाद 1 है, ये है हमारी कॉम्पिटेंसीज, कि हमने कितनी कॉम्पिटेंसीज इसमें कवर करनी, ओके। तो ये हमने 18 कॉम्पिटेंसीज कवर करनी है, 18, कितनी कॉम्पिटेंसीज, 18, ओके। और इसका मतलब अब आपको क्या नजर आएगा, ये 1.1, 1.2, 1.3, 4, कहां तक, टिल, अनम्यूट करो, 18। और जो आगे वाला 1 है वो भी चेंज होगा, Yes, as per the class. फिर वो क्या आएगा, 2.1 से लेके 18. फिर हमने कहां तक जाना है, ये 3, 4, 5, 6, गॉट इट। 6 क्लास की बात नहीं कर रही, फाउंडेशन के लिए क्या नंबर होगा, 1, LKG के लिए 2, UKG के लिए 3, क्लास 1 के लिए 4, क्लास नेक्स्ट 2 के लिए 5 एंड क्लास 3rd के लिए 6। हमने पूरा इसमें वहां तक कवर किया है, 6 तक। इसका मतलब 18 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर लो, कितनी स्लाइड्स आएंगी आपको यहाँ पर, 18 इंटू 6, 18 इंटू 5 करेंगे तो 90 होगा, 18 इंटू 6 करेंगे तो 108 हो जाएगा, ठीक है। तो 108 स्लाइड्स हैं, लेट्स सी कितनी हम इसमें आज के डेट में कवर कर पाते हैं, लेट्स सी, ओके। बट यू ऑल शुड अंडरस्टैंड कि हमें ये चीजें समझनी है, बिकॉज यू विल बी इम्प्लीमेंटिंग द सेम इन द क्लास, ओके। तो ये जो 1.1 है, इसमें वी आर टॉकिंग अबाउट द फाउंडेशन स्टेज। इसमें क्या लिखा है, बिगिन टू स्टेट सम फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट सेल्फ, बच्चा अपने बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताना शुरू करे, राइट। क्या लिखा है कीर्ति मैम यहाँ पर, व्हाट इज रिटन ओवर हियर, Today we will talk about different body parts. I have 2 eyes. ठीक है, I guess it is echoing. I'll be reading it for you. कि students, they are sitting together in during a circle time and they're talking about, we will be talking about the body parts, right? Like now first teacher is saying, see, I have got 2 eyes, right? And the children, they are saying, I've got 2 hands, I've got 2 eyes, I've got 2 legs, right? I have got so many fingers, right? Now, when they are saying so many, they can count also. You can help them count how many fingers and thumbs do we have. They should
be familiar with, like this is called thumb and these are called fingers. तो ये सब activities आप जो note करोगे ना अपने, accordingly you will be doing the same in the classes also, right? Okay. Okay, this is not only for this year, this is like we are preparing like next year also, right from the very beginning you should start including such kinds of activities in your daily classroom, daily activities, right? So ये आपका आ गया. अब मैंने इसको किस तरीके से अरेंज किया है, मैं सिर्फ खाली फाउंडेशन की पहले बात नहीं कर रही हूँ. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट जब यही बच्चा एलकेजी में जाएगा, तो फॉर दिस ओनली उस बच्चा क्या बताएगा. अब देखो और उसको इलेबोरेट कर रहा है. Now in class LKG, the child is saying, I have got chubby. I'm not getting, sorry. Okay. When the child is going to class to LKG, okay, the next stage, now the child is trying to recognize, like I've got chubby cheeks, I have got what kind of hair, I look like my father, we both have curly hair. Right? And here the child is saying, look, I have made one ponytail. I really like my hair this way. I mean, बच्चे अपने आप के बारे में और ज्यादा अच्छे से explain कर रहे हैं. और आप देख रहे हो कि क्या difference है कि एक लेवल से पहले बच्चा सिर्फ देख रहा है मेरे पास कौन से बॉडी पार्ट हैं, फिर बॉडी पार्ट के आगे characteristics यानी एडजेक्टिव्स जो हैं वो बताना शुरू कर रहा है. अब देखिए ये कौन सी क्लास है, बताओ. Yes. हाँ, दिस इज यूकेजी क्लास. अब यूकेजी क्लास में क्या आ रहा है हमारे पास कि डिस्क्राइब सेल्फ एंड अदर्स इन टर्म्स ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जेंडर्स, लाइक्स एंड डिसलाइक. हम एक स्टेप और आगे बढ़ गए. नाउ द चाइल्ड इज सेइंग आई एम अ बॉय, ओके, एंड द गर्ल्स आर सेइंग आई एम अ गर्ल, राइट. वो कह रहा है कि आई लाइक टू प्ले, शी इज सेइंग आई एम अ गर्ल, आई डोंट लाइक टू प्ले विद डॉल्स. तो इसमें हम जेंडर से रिलेटेड भी आगे आगे साथ लेते हुए चलेंगे. आप देखेंगे दे आर सो ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड कि इनमें उन चीजों को भी साथ में लिया गया है, जेंडर इक्वालिटी, कि हम अपने अंदर प्री कंसीव्ड नोशंस नहीं बना के रखे कि गर्ल है तो वो डॉल के साथ खेलेगी, गर्ल है तो उसको पिंक कलर ही पसंद होगा, तो ये कोई जरूरी नहीं है. ओके, सो अब बच्चे अपनी अपनी जो इच्छाएं हैं, अपनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स बताना शुरू कर रहे हैं. देखिए स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, राइट. सो ये उनमें डिफरेंस आने चाहिए. अब यहाँ पे क्या लिखा है, ओके एवरीवन लेट अस स्टार्ट our meeting and greeting, and I'll start. Hello everyone, I am a girl and I have got beautiful long hair. तो यहाँ पर initiate number 1 जो लिखा है, initiate कौन कर रहा है अपनी बात, टीचर. आप सबसे पहले बताएंगे अपने बारे में, फिर आपको देखकर बच्चे अपने बारे में बताना शुरू करें, राइट. और जब लाइक्स एंड डिसलाइक्स की बात कर रहे हैं, बच्चों को कह सकते हैं आप अपनी फेवरेट चीज लेकर आ सकते हैं स्कूल में. यू कैन ब्रिंग योर फेवरेट टॉय टू द स्कूल. बच्चे खुश हो जाएंगे कि हाँ आज हम अपना फेवरेट टॉय लेके जाएंगे, उसके बारे में हम बोलेंगे, right. You can have some activity. See, the child is showing this, see everyone, I have brought my teddy today and it is my favorite toy. So you will get to know. जब वो लेकर आ रहे हैं, इसी से आप वो शीट भर सकते हैं अपनी. इंस्टेड ऑफ आप डायरेक्टली आप उनसे पूछ रहे हो आपको क्या पसंद है, क्या पसंद है, एकदम बच्चे के माइंड में भी नहीं आ रहा है. एटलीस्ट द चाइल्ड विल गेट सम टाइम कि मैं किस तरीके से अपना प्रेजेंट करूं. नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट ये कौन सी क्लास है, 4.1 की बात करें. वी आर टॉकिंग अबाउट क्लास 1. ओके, सो क्लास 1 में अभी बच्चे को बॉडी पार्ट्स और लाइक्स डिसलाइक्स के बाद अब बच्चा को अपना यूज पता चल रहा है कि डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं, व्हाट आई डू विद देम. ओके, यूजिंग माय हैंड्स आई क्लैप क्लैप क्लैप, यूजिंग माय फिंगर्स आई स्नैप स्नैप स्नैप. तो यू कैन इवन हैव सच काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज. आप वो हेड, शोल्डर, नीज एंड टोज वाली एक राइम है ना, वो आप चला के उनके साथ इन अ सर्कल टाइम यू कैन हेल्प देम प्ले, बाहर लेके जा सकते हो उनको आउटसाइड. और उसके साथ जैसी बहुत सारी और भी पोएम्स अवेलेबल हैं, इफ यू चेक इट आउट. स्मार्ट बोर्ड में आपके पास हैं ऑलरेडी, यू कैन प्ले द सेम ऑन द स्मार्ट बोर्ड एंड हेल्प द चिल्ड्रन, ओके, डू द डिफरेंट एक्शंस और जेस्चर्स. ओके, so such kinds आप ढूंढेंगे, इस चीज ये आपका वर्क है now. Okay, everything will not be served on a platter. You have to find such kinds of videos. I know you are already sharing with your students in the WhatsApp groups also for the homework, but you can play the same in the class also. Find different poems. Okay, so the same can be done. Now coming to next class. Now they see what are the students doing. They now read what is the competency, maintain correct posture, use various body movements to participate in games and sports. Now what are the children talking to each other? Hey, move a little backward, only then you will be able to catch the ball.
वो डिस्टेंस को भी देख रहे हैं, बॉडी को भी देख रहे हैं कि किस तरीके से आपको, आई डोंट वरी, आई एक्सटेंड माई आर्म्स, वो कह रहा है कोई बात नहीं, मैं उस बॉल तक पहुंच पाऊंगा अगर मैं अपने हाथ आगे कर लूंगा तो। ओके, एंड क्या हो रहा है कि विजुअल स्पेशियल अवेयरनेस भी हो रही है। स्पेशियल अवेयरनेस क्या होता है? जब हम अपनी बॉडी को स्पेस में समझ पाते हैं, ये भी हमारी एक सेंस है, राइट? आई वॉज अबाउट टू शेयर विद यू पीपल कि हम सिर्फ बच्चों को क्या बताते हैं, क्योंकि 5 हमारे सेंस ऑर्गन है, तो हम 5 सेंसेस ही बताते हैं, बट वी हैव गॉट मोर देन 5 सेंसेस, more than 5 senses. I'll be talking about that also in detail. 5 से ज्यादा सेंसेस है हमारी। जो हमें भूख लगती है, प्यास लगती है, वो भी क्या है? हमारी सेंस। जो बच्चों को लगता है कि मैम आई वांट टू गो टू द वॉशरूम, वो अंदर फीलिंग आती है ना, दैट इज ऑल्सो अ सेंस। ओके, अच्छा, अब अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे पानी का गिलास पकड़ूं, ठीक है, अगर मैं, ठीक है, वीडियो नहीं भी अपनी देख रही, मैं उधर भी देख रही हूँ, कुछ काम करते हुए मैं पानी पीऊंगी तो ऑटोमेटिकली गिलास कहाँ जाएगा? बिना देखे मैं कहीं नाक, आंख, मुंह, कान में तो नहीं डाल लूंगी। कैन आई डू दैट? नहीं होगा ना, दैट विल नॉट बी डन। तो वो क्या है? अवेयरनेस। अच्छा चलो, अभी मैं आपको बोलती हूँ, या आप देख मेरी तरफ रहे हो, टच योर नीज, अपने नीज को टच करो, कर लिया? देखना, ढूंढना पड़ा अपने नीज को? नहीं ढूंढना पड़ा ना, है ना? टच योर टो, पैर की उंगली को भी, ठीक है, अभी पहुंचेगी नहीं, बट यू विल बी एबल टू डू दैट। पैर थोड़ा ऊपर उठा लोगे, उसको टच कर लोगे, राइट? हेड कहाँ है? ईयर कहाँ है? ईयर कहाँ है आपका? तो देखना तो नहीं पड़ेगा कि आई वांट अ मिरर, पहले मिरर में जाऊं, फिर मैं ढूंढूं, फिर मैं ईयर को पकड़ूं। नहीं होता ना, ये भी हमारी क्या है? दिस इज ऑल्सो अ सेंस। तो बच्चों को हम बताएंगे, मैं आपके साथ पूरी डिटेल में शेयर करूंगी कि 5 नहीं, एक तो हम कहते हैं ना, हमारी एक 6 सेंस होती है किसी की, जिसको पता चल जाता है क्या हो रहा है ना? 6 नहीं, हमारी 10 तक सेंसेस हैं, ठीक है? तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप बच्चों के साथ भी शेयर करिएगा। तो ये आपको समझ में आ गया ना कि किस तरीके से अपनी बॉडी के बारे में ज्यादा अवेयरनेस हो रहा है। एंड नेक्स्ट इज, हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं? क्लास 3 की, पर ये आप क्लास 2 तक ही कंप्लीट करेंगे। पार्टिसिपेट्स इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स टू स्ट्रेंथन एंड एक्सटेंड ग्रॉस मोटर स्किल्स, राइट? वो अभी जो धीरे धीरे सीख रहे हैं, अपनी बॉडी की और डेवलपमेंट होती है, और दे आर पार्टिसिपेटिंग इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रॉस मोटर एक्टिविटीज। आई विल किक द बॉल एंड स्कोर अ गोल, I'll extend my arms and stop the ball. उनको पता है कि मैं यहां से किक करूंगा, इतनी जोर से करूंगा तो बॉल गोल तक पहुंच जाएगी। सेंस भी कर रहे हैं, उनको अपनी बॉडी और स्ट्रेंथ का पता है। गॉट इट? तो ये चीजें नर्सरी क्लास के बच्चे को नहीं पता होंगी, राइट? तो कैसे स्टेप बाय स्टेप उनकी अवेयरनेस होती है, यू शुड नो। तो अभी तक वी हैव टॉक्ड अबाउट द फर्स्ट कॉम्पिटेंसी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, राइट? So now you have to note it down, like what sort of activities you will be doing. आप अपनी अपनी क्लास के अकॉर्डिंगली नोट कर सकते हैं। ओके, नाउ सेकंड हमारे पास जो कॉम्पिटेंसी है, दे विल बी आइडेंटिफाइंग क्लोज फैमिली मेंबर्स। बच्चे को, अपने छोटा सा बच्चा है, उसको अपने मम्मी पापा का, अपने सिबलिंग भाई बहन का पता होता है। जब मैं आपके साथ जेंडर इक्वालिटी की बात कर रही हूँ, अब यहाँ पर देखो पिक्चर में, कैन यू सी द जेंडर इक्वालिटी? नाउ व्हाट इज हैपनिंग? Papa is chopping the vegetables and mama is reading the newspaper. हाँ, यूजुअली जो हमारी पुरानी बुक्स हैं, या अभी तक भी की भी बुक्स होंगी, उनमें भी क्या होता है? ऑपोजिट। पापा अखबार पढ़ते हुए दिखाई देते हैं, मम्मा कटिंग चॉपिंग कर रही होती है। ओके, तो इस तरीके से आप भी जो वर्कशीट्स बनाते हो, आप ऐसे इमेजेस ढूंढ के डालो, अलग से नहीं हमने जेंडर इक्वालिटी सिखानी। आप जब डॉक्टर की फोटो क्लिपर ढूंढोगे वहां पर, तो हमारी प्रेजुडिस होती है कि डॉक्टर का मतलब शायद मेल ही होता है, तो फीमेल की पिक्चर लगाओ। नर्स की पिक्चर लगाते हो तो मेल की पिक्चर लगाओ, क्योंकि वो हम सोचते हैं कि नर्स शायद फीमेल ही होती है। नर्स कैन बी अ बॉय ऑल्सो। ओके, सो इस तरीके से आप वो, मतलब वर्कशीट के थ्रू ऑटोमेटिकली बच्चों में वो सेंसेस आनी चाहिए। क्लियर? सो नाउ मूविंग अहेड, this is about the foundation class. Like the child is saying it's a Sunday today and mommy is reading the newspaper, papa is making a special biryani. Okay, and now what is happening next? Now the second LKG तक हम क्या expect करते हैं? They'll be able to identify the close family members, friends and neighbors. Right now they are going outside in the market also, the child is recognizing like who is there. I mean, मम्मा दिस इज माय फ्रेंड वरुण एंड शर्मा आंटी, तो बच्चा रिकॉग्नाइज कर रहा है।
राइट। एंड मतलब आप सोचो कि आपके बच्चे जो हैं वो आगे और रिकॉग्नाइज करें आपके मतलब कि आप स्कूल में कैसे करोगे? Means the child is not recognizing only you as a class teacher but should be recognizing the other teacher also. उनको पता चले कि आरती मैम इज देयर, मैम ये आरती मैम है, हमें डांस सिखाती हैं उस क्लास को, उदयन सर हैं, राइट। मतलब दे शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, राइट। एंड नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ग्रेड, exhibits understanding of relationship with extended family members. Okay, extended family आ गई, कौन? चाचा चाची मौसी दादाजी, मतलब वो पूरे सारे हमारे जो आगे एक्सटेंडेड फैमिली तो हमारे रिलेटिव्स हो गए ना, विद देयर कजन्स एंड ऑल। ओके, मामा जी, ओके, सारे मैटरनल एंड पैटर्नल जितने भी रिलेटिव्स हैं, एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स हैं, उनको बच्चा रिकॉग्नाइज करे, राइट। दे शुड बी एबल टू डू दैट। आप उनसे ऐसी एक्टिविटीज करा सकते हो ना सर्कल टाइम में, लाइक कहाँ गए थे, आई वेंट टू माई नानी हाउस, छुट्टियों में कहाँ गए थे, आई वेंट टू माई बुआ जी, ओके, माई आंट एंड ऑल, जैसे भी करके जिस भी लैंग्वेज में द चाइल्ड इज फीलिंग कंफर्टेबल। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ग्रेड, demonstrate love and respect for immediate and extended family member and neighborhood. Now the child is expressing emotions also, right? जब कोई जाता है तो बच्चा उसको मिस करता है कि हाँ मेरी आंटी अंकल आए थे, याद आ रही है, दादू दादी की, फोन कर लिया। ओके, सो मतलब इस तरीके की आप बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट, demonstrate care and respect for immediate and extended family members, neighborhood and pets. पहले तो सिर्फ एक थोड़ा सा इमोशन आया, जेस्चर, अब आगे क्या है? द चाइल्ड इज फीलिंग कि मेरे को दूसरों की सपोर्ट भी करनी चाहिए। मैम कैन आई कैरी इट फॉर यू, मैम भी उसी में आती ना, स्कूल में तो आप वही चीज ऑब्जर्व करोगे। एंड दीज काइंड्स ऑफ लाइक gestures they can even share at home also, you can talk to them कि आपको हेल्प करनी चाहिए मम्मा की, पापा की, राइट। कोई बाहर से आता है तो कैन यू से कि मम्मा कैन आई सर्व अ ग्लास ऑफ वाटर, राइट। सो अगर कोई काम कर रहा है तो उसमें दे कैन लेंड अ हेल्पिंग हैंड। नाउ नेक्स्ट इज they demonstrate care and respect for immediate and extended family, friends, neighbors। अब साथ में दो चीजें इसमें ऐड होगी, pets and surroundings। If they have got pet, wonderful, they are caring for it। नहीं है तो आसपास environment की बात कर रहे हैं, नेचर की बात कर रहे हैं कि हमें प्लांट्स जो हैं अगर वो खुद लगाएं, उनको आप ऐसा करें कि अपने बर्थडे पर आप यू शुड गो हैड प्लांट ट्री ऑन योर बर्थडे, फोटोग्राफ हमारे साथ शेयर करो, ओके। और मे बी दे कैन ब्रिंग अ प्लांट एंड स्कूल में लगा लो, ओके। एनी वेज आई मीन दिस इज हाउ द सेम कैन बी डन। और उनको में ये हैबिट होना चाहिए कि आई विल नॉट बी प्लकिंग द फ्लावर्स। छोटी छोटी मतलब इन्वायरमेंट को किस तरीके से हम बेटर कर सकते हैं, सराउंडिंग्स का कैसे ख्याल रख सकते हैं, इधर उधर कूड़ा कचरा नहीं फेंके, तो ऐसे हम उनसे बात कर सकते हैं। सो नाउ कमिंग टू द थर्ड में क्या हो रहा है अब इसमें, पार्टिसिपेट्स इन द एक्टिविटीज एंड टेक्स इनिशिएटिव्स। तो क्या हो रहा है इसमें, आप क्या समझ में आ रहा है? अब आपसे पूछ रही हूँ तो आप एको कर रही है आवाज आपकी। Riya, let's make a rail track with these blocks. And now They are playing. they are playing. Now, what are they doing? They are taking initiative. Yes. They are helping to each other also. हाँ, अभी हम क्या कह रहे हैं कि एक तो इनिशिएटिव ले रहे हैं। सबसे पहले हम ये बात करें कि एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें, दे आर टेकिंग इनिशिएटिव कि हाँ हम ये करें, चलो हम ये करें। अपनी तरफ से मन में है ना, आपने इंस्ट्रक्शंस नहीं दी, ये दादी साथ में बैठी हैं, मम्मी साथ में बैठी हैं, उन्होंने नहीं बोला कि बेटा ऐसा करो, बट दैट्स द सेम थिंग केम इनटू द माइंड ऑफ द चाइल्ड कि बच्चे इस स्टेज पर इनिशिएटिव लेना शुरू करते हैं कि आप उनको ब्लॉक्स तो हमेशा आप ही को एक गाइड नहीं करना है कि इससे आपको ये करना है, बट द चाइल्ड कैन इवन थिंक ऑन his or her own कि हमें इससे क्या करना है, what we can do, okay, let them be creative। and now the next is they express their own preferences, interest। बच्चा बता रहा है कि I like paper toy, so I am making a paper plane। and दूसरे बच्चा कह रहा है कि I want to play with the blocks। उनकी choices आ गई, उनकी preferences आ गई कि पहले तो टीचर ने ब्लॉक दे दिया, सब बच्चे खेलना शुरू हो गए, बट हियर नाउ द चाइल्ड इज सेइंग कि नहीं मैम मुझे इससे नहीं खेलना, मुझे उससे खेलना है। कैन आई डू दैट? तो थोड़ा एक स्टेप बच्चा और आगे आ गया, तो आप नहीं कहेंगे नहीं यही खेलना है, मैंने जो दे दिया वही खेलना है। डोंट बी दैट रिजिड, ओके। नाउ नेक्स्ट,
Next is happening, I am demonstrates independent activities. I'm tying my shoelaces. I can brush my teeth. I can make my own bed. बच्चे क्या है, चीजें इंडिपेंडेंटली करना शुरू करते हैं. पहले तो पेरेंट क्या करते हैं, खुद उनका ब्रश कराते हैं उनको, कैसे क्लीन करना है. ओके, अलग अलग आप उनको मेथड्स बताते हैं, हाथ पकड़ के खुद कराते हैं. नाउ द चाइल्ड इज डूइंग ऑन हिज और हर ओन एंड मेकिंग बेड ऑल्सो. थोड़ी चीजें, ओके, बटन्स लगाने, शू लेस करना, मतलब थोड़ी छोटी चीजों के लिए, जरूरी नहीं कि सारी करना शुरू कर दे, बट कुछ एक एक्टिविटीज के लिए दे आर टेकिंग इनिशिएटिव कि नहीं मैं खुद करूंगा. देखा होगा अपने बच्चों को, वो कहते हैं नहीं मैं खुद करूंगा, मम्मा आई विल डू माय ओन. टीचर भी नहीं मैम मैं खुद करूंगा. ओके, सो they start taking initiative. Next is they take part in exercise, play and movement for fun and exercise. आप लेके जाते हो ना उनको बाहर ऐसे स्लाइड्स के ऊपर, राइट? सो नाउ दे स्टार्ट एंजॉइंग. ओके, कि ये कर रहा है. पहले बच्चे डरते हैं कई बारी कि मुझे नहीं करना, फिर कई बारी दूसरों को देखकर उनको लगता है कि नहीं लेट मी ट्राई, मैं एक बारी ट्राई करता हूँ. आप भी उनको थोड़ा बताते हो, पर बच्चे एक दूसरे की तरफ देख के ज्यादा थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना शुरू करते हैं. नेक्स्ट, हाँ जी, क्या है इसमें? आई तो वांटेड यू पीपल टू स्पीक अबाउट इट. Now they are enjoying and following the rules also. हाँ, तो अभी क्या है, पहले तो अपनी मर्जी से फ्री प्ले हो रहा है. Free play, yes. Now Now they are following the under rules. control. Yes. Now in the class Enjoy. second, they are under control. They are following the instructions also. You should not go for this side or that side. You should be there in this slide only. So they Yes. are following and making a line queue and then taking a slides. हाँ, तो ये म्यूजिकल चेयर वाला जैसे हमारा गेम होता है, तो दे आर प्लेइंग कि हाँ कीप डांसिंग एंड आई विल विन द गेम, आई विल सिट क्विकली व्हेन द म्यूजिक स्टॉप्स, राइट? तो बच्चे का क्या अटेंटिवनेस भी बढ़ता है कि ध्यान रखेगा कि म्यूजिक बंद हो जाएगा तो मुझे फटाफट जाके बैठना है, मुझे ऐसा करना है. तो क्या है कि वो भी एक तरीके का रूल्स को फॉलो करना वो शुरू करते हैं. एंड नेक्स्ट, व्हाट इज हैपनिंग हियर? Now they are making their own individual games and trying to indulge in that. हाँ, yes, and also they are waiting for their turn also, है ना? Turns also, and they are cooperating to each other. They are cooperating to team Cooperate. members and following the Yes. rules as well. यस, रूल्स फॉलो करते हैं. आप देखो जब बड़ी क्लास में जाएंगे, जो चीज बच्चे ने छोटी क्लास में सीखी है वो तो हम एज्यूम करेंगे कि वो तो चलेगी ही चलेगी. जैसे हमने पहले पढ़ा कि रूल्स दे विल बी फॉलोइंग, तो रूल्स तो वो फॉलो कर ही रहे हैं, उसके साथ में एक दूसरे के साथ कोऑपरेट भी कर रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं कर रहे हैं. हाँ मेरी टर्न है, नहीं आप इसको पास करो, ठीक है, उसके बाद उसकी टर्न आएगी, तो दे आर कोऑपरेटिंग विद ईच अदर, राइट? सो नेक्स्ट हमारे पास अब हम फोर्थ की बात करेंगे. 3 अभी तक हमने डिस्कस करे. Let's see how many we can discuss today. Please make sure you all at your home you spend some time, because tomorrow also you will be leaving early. I will not be able to discuss these points with you people. Make sure if I share a recorded version, you people can watch at your own pace as and when you are free. Okay? So they wait for their turn and they follow simple instructions with the teacher support. Okay? सो नाउ दे आर वेटिंग. ये नहीं कि मैं पहले मैं नहीं करते वो, राइट? थोड़ा सा समझना शुरू करते हैं. एंड नाउ व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? इसके साथ देखिए हर एक के साथ एक एक इंस्ट्रक्शन और बढ़ती चली जाएगी. पहले हमने देखा वेट फॉर देयर ऑन टर्न, एंड नाउ साथ में फॉलो 2 लाइन सिंपल इंस्ट्रक्शन. ओके, नाउ व्हाट इज द टीचर सेइंग? टेक आउट थिंग्स फ्रॉम द जार एंड टेल मी अबाउट व्हाट यू गेट. तो 2-3 इंस्ट्रक्शन आप एक साथ बच्चों को दोगे तो बच्चा उसको याद रखेगा, पहले मुझे ये करना है, उसके बाद मुझे ये करना है. ओके, सो नाउ दे आर टेकिंग देम आउट एंड दे आर स्पीकिंग अबाउट दैट. ओके, तो मतलब एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन को बच्चा फॉलो करता है. एंड नाउ फॉलोज इंस्ट्रक्शंस एंड सिंपल रूल्स एट द सेम टाइम. रूल तो हमने सेट कर दिए पहले ही, और साथ में हमने इंस्ट्रक्शंस दे दिए. तो वो सारी चीजें कि टीचर ने बोला है कि टॉय निकालना है, खेलना है. ओके, और अगर आपने बोला है कि एवरीवन नाउ वाइंड अप फास्ट, विल वॉश आवर हैंड्स फर्स्ट एंड इट्स अ टाइम फॉर लंच, तो कितनी सारी चीजें एक साथ बता दी कि खेल रहे हैं आप, रखो इसको, उसके बाद हाथ धोने, हाथ धो के क्या लंच के लिए जाना. सो इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स होती चली जा रही है, नंबर इज इंक्रीजिंग. ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर? Follows 3 to 4 instructions or the rules at a given time, right?
Read it, Dipti ma'am. What is written over here? Pick up whatever you like from the garden which is lying on the floor. Then we will go back to classroom and make a collage using it. So 3 instructions are there. हाँ, पहले तो first, क्या कर रहे हैं, गार्डन में जो जो फ्लोर पर पड़ा है वो उसमें उठाना से है उनको. उठा रहे हैं, उसके बाद बट उसके साथ में क्या लिखा है? पिक अप वॉट एवर यू लाइक. you like, हाँ, जो उठाना आपको है. पसंद है वही उठाना है. हाँ, उठाना है, पर वो जो उनको पसंद आए. ओके, फिर उसको क्लास में ले जाकर उसका collage. कोलाज बनाना. ओके, वो अपनी लाइक्स के अकॉर्डिंगली चीजें, कोई फ्लावर ले रहा है, कोई लीव्स ले रहा है, कोई कुछ और ले रहा है, राइट. तो उससे फिर वो कोलाज बना रहे हैं. तो कितनी सारी इंस्ट्रक्शंस आपकी इकट्ठी हो गई, एंड वॉट एवर दे आर फॉलोइंग. एंड नाउ फॉलो कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस, रूल्स, एंड स्टार्ट क्रिएटिंग देयर ओन रूल्स ऑल्सो. जैसे हम क्लासरूम में एसेंशियल अग्रीमेंट करते हैं, राइट. नाउ दे आर मेकिंग देयर ओन रूल्स ऑल्सो. What is happening if the ball bounces twice on the ground and then it is caught by the fielder, then it is out. फिर क्या कह रहे हैं? If the ball touches the ground once and then goes out of the walls, then it is 6 runs. मतलब ठीक है, ये तो बने हुए रूल्स हैं, बट वो अपने भी बना सकते हैं. Got it? कि वो अपने भी, हाँ हमने अपनी गेम बनाई है, हम अपना रूल ये बनाएंगे, हम अपना रूल ये सेट करेंगे, राइट. सो हाँ, नेक्स्ट. Now what is happening over here? शिखा मैम बताओ, आप बताओ क्या हो रहा है इसमें? Follow complex instruction rule, frame their own rule for invented game and activities. Yes, ma'am. After every count of 5, we have to say bottle. जैसे हम लड्डू हाँ. हाँ, तो वो कंप्लीट होने के बाद में पूरा, जैसे जिसके पास 5 आएगा वो फिर बॉटल बोलेगा, मतलब फिर हाँ. वो 5 नहीं बोलेगा. हाँ, मतलब अब आप देखो कि आफ्टर काउंट ऑफ 1 2 3 4, तो 5th वाले को 5 नहीं बोलना है, क्या बोलना है? बॉटल. फिर 6 7 8 9 10 वाले को क्या बोलना है? बॉटल. तो वो उसको याद रखना है, ठीक है. दैट कैन बी अ वेरी गुड वार्म अप एक्टिविटी ऑल्सो. आप बच्चों के साथ ऐसे ही कोई भी बॉटल की जगह कुछ भी एक और वर्ड करके यू कैन हैव सच काइंड ऑफ फन इन द क्लास. ओके, तो बच्चों को याद रहेगा कि जब हम मल्टीपल ऑफ 5 कर रहे हैं तो 5 पर बोलना है, फिर 10 वाले को बोलना है, 15 वाले को बोलना है जिसके ऊपर वो आएगा. 2 का टेबल करा रहे हो तो हर ऑल्टरनेट को आपको बॉटल बोलना है. 1 बॉटल, 2 बोलना नहीं है, 2 तो छोड़ दिया. फिर क्या है? 3, उसके बाद क्या बोलना है? बॉटल. वो बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना. सो थोड़ा सा इससे उनकी क्या है कि वो अटेंटिव होते हैं, उनके कॉग्निटिव स्किल्स भी बेहतर बनती हैं. दो वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिकल डोमेन, बट ये सारी डोमेन्स क्या है? इंटर रिलेटेड होती हैं. नेक्स्ट, ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, आपका भी टाइम हो जाएगा. ओके, ये 1.5 इसमें बताइए क्या हो रहा है? फिफ्थ हम ले रहे हैं. यस. Now introducing the new child in the classroom. Look, we have a new friend in our class. His name is Tanuj. So ma'am is introducing the new child in the classroom. Ma'am, where do I keep my bag? The child is asking, where do I keep my bag? And the third thing is, you can keep it in that shelf. So she's instructing him or her in the classroom where he has to sit and where we have to keep the bag and all. So what is happening over here is when the child is coming to the class, a new child is there, तो उसको help चाहिए होती है. तो वो help के लिए किससे पूछता है? टीचर से पूछता है कि मैं क्या करूं. ठीक है, वो घबराता नहीं है, पर उसको पता होना चाहिए कि मैं पूछ लूं. ऐसा नहीं कि बोले कि मेरे को किसी ने बताया ही नहीं, पता ही नहीं क्या करना है. तो चाइल्ड आस्क्स द टीचर. और उसके बाद में सेकंड लेवल पर क्या हो रहा है? मेक्स एडजस्टमेंट्स इन द क्लासरूम एंड विद other children, right? So now what is happening over here? You also want to read the same story? Let's share the book. अगर बच्चा एक नया है, कोई और कर रहा है, तो आप accommodate भी हो रहे हो उसमें, अपने आप को उस environment में आप adjust कर रहे हो. उसको पता होता है कि हमें adjust करना है. We have to make changes accordingly. Okay? Now next. Now next, 3.5, it shows adaptability to any changes in routine or daily schedule, right? So now what is happening over here? Shikha ma'am, you can speak. First, Didi, why no more classes on the phone?
And the second, because the schools are now open, dear. Don't you want to meet your friends? Hari, I will meet my friend every day now. हाँ, so क्या हो Discussing रहा है कि about या discussing about मतलब online classes to switch to that switch to the physical classroom. physical mode. So now the child is changing, adaptability. Okay, जब बच्चे को पता है कि अब तो हर बार क्या हो रहा है, कभी धूप आ गई है, बहुत ज्यादा गर्मी आ गई, ठंड हो रही है, अब तो सर्दी कितनी चल रही है, तो अगेन वी स्विच टू ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑल, कि बच्चा घर पे रहेगा, होमवर्क भेजना है, तो चाइल्ड इज एबल टू अडेप्ट टू द चेंजेस इन रूटीन, कि आज मुझे घर से पढ़ना है या आज मुझे वहां पढ़ना है. ठीक है. सो नाउ next is shows adaptability to any changes in routine and makes adjustment. Now, what is happening over here? Yes, Neha ma'am. Shows the adaptability to any change in routine, make adjustment. Ma, you feed the baby. I will make the bed every day from now. Thank you so much, dear. मैम जो न्यू बेबी आया है उसकी वजह से जो फर्स्ट बेबी है वो खुद ही एडजस्ट करके माँ की हेल्प कर रहा है ना. तो ऐसे ही बिल्कुल क्या है कि हम बच्चों को ये सिखाएंगे कि आपको पता है कि इस एज में कई बार होता है बच्चों के सिबलिंग होते हैं छोटे, तो कि थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि अपनी मम्मा की, पापा की, जो भी घर में ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनकी हेल्प करें, और ये नहीं कि बच्चा वो सोचना शुरू कर दे कि मम्मा उसकी तरफ ज्यादा ध्यान दे रही है या मुझे ध्यान नहीं दे रही है. राइट. सो हाँ जी, नेक्स्ट या मीनाक्षी मैम. School got over early today, so I am pouring the leftover water on the plants. आपको what also do the same. मीनाक्षी मैम, what you have to do is पहले नंबर 1 वाला पढ़ेंगे आप. नंबर 1 2 3 इसीलिए लिखा हुआ है. ओके, नंबर 1 is what are you doing? हाँ, so the school got over early, so I am pouring the leftover water on the plants. You can also do the same with a great idea. तो क्या हो रहा है कि वो आप एक दूसरे से अच्छी बातें भी सीखते हैं और इसके साथ साथ उसको फॉलो भी कर रहे हैं कि हम मेरा अप्रिशिएट कर रहे हैं. तो चाइल्ड इज अप्रिशिएटिंग. ग्रेट आइडिया. ओके, राइट. सो नाउ नेक्स्ट इज आपके पास है ये डेमोन्स्ट्रेट लीडरशिप क्वालिटीज एंड सुजेस्ट फॉर चेंजेस इन द डेली रूटीन. राइट. नाउ देखो बच्चे स्कूल में आए हैं, दे आर वेयरिंग मास्क. वी हैव टू सिट अपार्ट बिकॉज ऑफ कोरोना नाउअडेज. यस, शी इज राइट. वी ऑल्सो नीड टू वेयर मास्क एंड वॉश आवर हैंड्स. सो वो जो चेंजेस आ रही हैं टाइम टू टाइम, उसको क्या है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं और उसको समझ के फॉलो कर रहे हैं डेली रूटीन में. ये नहीं कि हम ऐसा नहीं करेंगे, बदलाव को एक्सेप्ट कर रहे हैं. ओके, सो वन मोर विल बी टेकिंग, right, and rest you will be getting in a recorded version. Make sure you check it out during the weekend. Okay, and then we will be meeting on Monday. 1.6, we will be talking about the 6th one. There are 18. Okay, we are talking about the 6th one. Now what is happening over here? Chooses an area and gets engaged in the activity. Activity करने के लिए कि मेरे को कहाँ करनी है activity. Like what is happening over here? They are saying I am making figures with what are you making today? I am making a drawing. I am making figures with clay. Now what they are doing is अपनी अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली दे आर डूइंग सम वर्क. किसी को क्राफ्ट अच्छा लग रहा है, क्ले अच्छी लग रही है, किसी को ड्राइंग अच्छी लग रही है. राइट. तो अलग अलग अगर एक्टिविटी एरिया, सपोज आपने अपनी क्लास में, आप अपनी क्लास में कॉर्नर्स भी, मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा जैसे आपने क्लासरूम है, आपके पीछे बच्चे कम हैं, पीछे पीछे कुछ कॉर्नर में जगह है, यू कैन हैव अ रीडिंग कॉर्नर. उसमें आप कुछ एक स्टोरी बुक्स रख दो. ठीक है. और अगर नहीं रखनी है, एक वहां पर हुक पैग लगवाकर एक बैग हैंग कर लो सुंदर सा. ओके, उसके ऊपर कुछ भी लिख लो, दादी नानी की कहानियां, कुछ भी ऐसे, पोटली बाबा की, जो भी है, सुंदर सा ऐसे नाम लिखकर उसके अंदर कुछ स्टोरी बुक्स. इवन द चिल्ड्रन दे कैन ब्रिंग देयर ओन स्टोरी बुक्स ऑल्सो. राइट. यहाँ आप लाइब्रेरी से भी कुछ बुक्स लाकर उसमें रख सकते हैं, पर उसके लिए आपको इशू करानी पड़ेगी वो अपने नाम पर. राइट. तो यहाँ बच्चों से भी बोल सकते हैं वी कैन हैव आवर ओन लाइब्रेरी. जो बुक्स आप यूज नहीं करते हैं तो यू कैन कम एंड हम यहाँ पर लाइब्रेरी एक बना लेंगे. तो उसमें क्या है, एक बच्चा बुक लेकर आएगा. अगर आप उनको सिखाएंगे, क्लास में 20 बच्चे हैं, एक एक बच्चा एक एक बुक लेकर आ रहा है, तो आपके पास 20 बुक्स हो गई. हर बच्चे के पास 20 बुक्स बन गई हैं. दे कैन रीड एनी बुक. ओके, तो आप उसमें हैंग कर सकते हैं कि जिस बच्चे का वर्क पहले खत्म हो गया है, आप वहां से बुक लेके पढ़ सकते हो. यू कैन गो टू द रीडिंग कॉर्नर.
ओके तो आपका देखो काम भी जल्दी खत्म करेंगे कि मैंने जाके बुक पढ़नी है। सो उसमें आप एक बैग पैग लगवा लो, सर श्रीकांत जी को बोलकर पैग अगर लगता है उसके ऊपर बैग अपना थैला हैंग कर दो और उसमें वो डाल दो, ठीक है, पोटली बना लो, कुछ भी बना लो, इनोवेटिव सा कोई नाम रख लो। तो दिस इज व्हाट यू कैन डू, ताकि बच्चा उसको जाके कि फ्री टाइम में मैं ये करूंगा ये करूंगी, ठीक है। एंड नाउ shows focus on a self-selected activity or the task to completion. Now what is happening over here? Everyone now wind up fast. It's time for lunch. So now the students, they are saying, ma'am, can I please come after finishing my bridge? कि बच्चे को ये लग रहा है कि मैं ये एक्टिविटी अपनी पूरी कर लूं, क्या मैम 2 मिनट और लगा लें, चाहे वो काम कर रहे हैं चाहे कुछ भी, ये नहीं। अब बच्चे को क्या है, फोकस हो रहा है अपने काम का, मैं ये बना रही हूँ, खाने के लिए नहीं, मैं अभी जाऊंगी, पहले इसको कंप्लीट कर लूं फटाफट, नहीं तो आधा रह जाएगा बीच में, राइट। तो उनका कनेक्शन हो रहा है उस एक्टिविटी के साथ में, फोकस बढ़ रहा है। नाउ focuses attention to complete tasks assigned by others. Now you have to select the circles and color it red. क्या कर रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शन दी हैं आप उसको फॉलो कर रहे हैं। पहले क्या था, फ्री प्ले, ये क्या है, गाइडेड एक्टिविटी। ओके, now next is come, it's time for lunch. Now the child is saying, I have to complete this first, now I'll be coming. They are setting the priorities, what I have to do first. Okay, so उनके लिए important बन जाता है ये काम। Next, shows increase attention span and persistence in tasks. We have finished measuring the table with our hands. Now I am measuring the class with my foot. अटेंशन स्पैन इसमें बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है अटेंशन स्पैन? आप जब बच्चा चल के अपने पैर से क्लासरूम माप रहा है फुट स्पैन से, वो याद भी तो रखेगा ना मैंने कितने फुट स्टेप आगे ले लिए हैं, ठीक है, याद भी तो रख लेना एक दो। हाँ बताओ। उसको चिपका कर भी रखना है, ये भी ध्यान देना होता है उनको, हाँ, अटेंशन हाँ, देते हैं हाँ। इस चीज पे कि अब मैम, वो दूसरा बच्चा देखता है मैम इसका आगे है, तो वो अटेंशन देते हैं कि मेरा चिपका ही हुआ है उसके साथ। हाँ, तो आप लोगों ने कराई हुई है ये एक्टिविटी, यस मैम, स्पैन, यस मेजरमेंट में कराया ओके, फुट हमने। स्पैन से करके, तो सच काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज। ओके, तो आई गेस फॉर दिस द लास्ट वन फॉर द 6th इज concentrates on more complex projects and completes the task even with a few interruptions, right? अगर उनमें कोई इंटरप्शन भी होती है, क्या लिखा है, पढ़ना जरा एक बारी, क्या लिखा है? Finally, I could finish my painting after the guests are gone. मतलब उनके घर में गेस्ट भी आए थे, हडल्स भी थे, बट उनका काम कंप्लीट हो गया, चाहे कोई आया चाहे कोई गया। है ना, उसने क्या, हाँ मतलब गेस्ट आ गए, उनके से मिलने भी गया होगा बच्चा, मिलने भी गया, नमस्ते भी करी होगा, लेकिन है ना, अपना काम कर लिया मैंने। काम पहले उसका रुक गया, अब फाइनली उसका काम पूरा हो गया कि डिफरेंट हर्डल्स आई हैं, जो भी आपने देखा उसमें इंटरप्शंस आई, बट स्टिल द चाइल्ड वाज एबल टू कंप्लीट द And they are happy also कि we have finished the work on time. हाँ, तो उसका ध्यान Because था ना, नहीं some तो students are very curious about their work, so we should complete our work on time because we have to be submit in the school. Suppose I submitted the holiday homework today, so they are very curious and they're very enthusiastic for their homework. Yes, I did this in very well manner. So they are represented also in good manner. नहीं तो बच्चों को क्या होता है कि कोई बात नहीं, गेस्ट आए हैं तो काम छोड़ दो, बट Yes. ये चीज फीलिंग आनी चाहिए कि हमने काम तो पूरा करना ही है, तो ये हमें सिखाना है। आज किस किस की टर्न नहीं आई, मुझे जो टीचर दिखाई नहीं दी, अंकिता नहीं मुझे दिखाई दी स्क्रीन पर, हाँ। Okay, so make sure all of you watch the videos that I'll be sharing with you people, okay, and we'll be meeting on Monday. Okay, so Monday we'll be talking about rest of the competences. Okay, तो अभी हमने 6 competences की बात करी है, 12 बच रही है अभी, 12. Okay, 12 for each class, 12 for each class. Fine, चलो. Okay, Ma'am, I have a question. Ma'am, I have a question. Ma'am, actually पेरेंट जो जिनको मैं कॉल कर रही हूँ ना इस चीज के लिए डिटेल वगैरह के लिए, wait. तो